Good evening, everyone. I, Tanishka, student of BA Honors Political Science of Shamlal College Evening, got the chance in Graduate Scholars Talk series to give a talk on the topic Age or Marriage, What Matters. शुरू करने से पहले दो लाइनें कहना चाहूंगी। लाख प्रतिभा हो मुझ में, पर हर कदम पर रोकी जाती हूँ। मैं वह कली हूँ उपवन की, जो खिलते ही तोड़ ली जाती हूँ। लड़की 18 साल की हुई नहीं कि लोग सवाल करने लगते हैं, अरे अब लड़की की शादी करानी है, कुछ सोचा है? घर के काम सिखाओ, ज्यादा बाहर मत घूमने दो। These are commonly uttered when it comes to discussion about the marriage of girls. Very rarely do we come across questions such as, is she legally eligible? What does she want? Has she completed her education? Is she healthy and well enough to bear bigger responsibilities? क्यों कोई ये सवाल नहीं पूछता लड़कियों से? क्या लड़कियां सिर्फ घर के काम के लिए बनी हैं? क्या उन्हें हायर एजुकेशन का अधिकार नहीं है? क्या उन्हें अपना करियर बनाने का अधिकार नहीं है? लड़की 18 की एज में सिर्फ स्कूलिंग ही कर पाती है कि उसे सीधा बोल दिया जाता है, नहीं, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। क्या उनके सामने उनकी शादी की बात करना, उनके अरमानों का गला घोटना सही है? To raise marriage age of women from 18 to 21. Our Prime Minister Shri Narendra Modi ji, during his Independence Day speech last year, had made a mention of the proposal. The decision is based on the recommendation of a four-member task force led by former Samta Party President Jaya Jaitley, also had on board Niti Aayog member Dr. V.K. Paul and several secretaries, which was constituted to examine matters pertaining to age of motherhood, imperatives of lowering MMR, that is, maternal mortality rate, improvement of nutritional levels, and related issues. Following the Cabinet's approval, the government will introduce an amendment to the Prohibition of Child Marriage Act 2006 and consequently bring amendments to the Special Marriage Act and personal laws such as Hindu Marriage Act 1955. अब अगर मैं आजादी से पहले की बात करूं, प्री इंडिपेंडेंस एरा की बात करूं, तो भारत में शादी की मिनिमम एज के लिए अंग्रेजों के समय से कानून बनते आ रहे हैं। तो आइए बढ़ते हैं इतिहास की तरफ। The Indian Penal Code, enacted in 1860, criminalized any sexual intercourse with a girl below the age of 10. The first act against child marriage had been passed in 1860 and it prohibited consummation of marriage for a Hindu girl below the age of 10. अब एक केस है रुक्माबाई का, जब हिंदुस्तान अंग्रेजों का गुलाम था उस दौर का। ये केस एक बहुत ही लैंडमार्क केस माना जाता है हिंदुस्तान के इतिहास का। रुक्माबाई का जन्म बॉम्बे प्रेसिडेंसी में 1864 में हुआ था। अब उस दौर में चाइल्ड मैरिज होता था। शी वॉज ऑल्सो अ विक्टिम ऑफ चाइल्ड मैरिज। शी वॉज मैरिड ऑफ एट द एज ऑफ 11 टू दादाजी भिकाजी। शी रिफ्यूज टू मूव इन विद हर हस्बैंड। इन्होंने कहा था, मुझे चाइल्ड मैरिज का विक्टिम नहीं बनना है, मुझे पढ़ाई करनी है और डॉक्टर बनना है। अब होता क्या है, ये केस कोर्ट में पहुंचता है। इस केस को लेकर एक बहुत ही खतरनाक डिबेट हुई थी इन बोथ इंग्लैंड एंड इंडिया। अब जब कोर्ट का डिसीजन आता है, द वर्डिक्ट वेंट इन फेवर ऑफ दादाजी एंड द कोर्ट ऑर्डर्ड रुक्माबाई टू चूज टू लिव विद हर हस्बैंड और चूज 6 month imprisonment. रुक्माबाई चूज imprisonment over दादाजी। रुक्माबाई ने कहा था, मुझे जेल जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं जाऊंगी। लेकिन the verdict was overruled by Queen Victoria of England. अब 1889 के केस की बात करते हैं, एक 11-year-old बंगाली गर्ल फूलमणि दासी की, who died due to forceful intercourse by her 35-year-old husband. That drawn intervention by the Britishers. The new act passed in 1860 to raise that age of consent from 10 to 12. Age of Consent Act 1891 में आया। अब ये was a legislation enacted in British India on 19th March 1891, which raised the age of consent
for sexual intercourse for girls from 10 to 12 in all jurisdiction. Its violation subject to criminal prosecution as rape. अब 1891 के बाद 30 साल तक कुछ नहीं हुआ था। इस पीरियड में दो इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी। नेशनल मूवमेंट के कारण लोगों का ध्यान नेशनल मूवमेंट पे था। अब विमेन का प्रॉब्लम नेशनल मूवमेंट के कारण दब गया था। दूसरी चीज ये हुई थी 1857 के रिवोल्ट के ब्रिटिश गवर्नमेंट न्यूट्रल हो गई थी। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट न्यूट्रल हो गई थी सोशल पॉलिसीज के रिगार्डिंग। तो अब 1927 में होता क्या है, द प्रोविजन ऑफ रेप वाज अमेंडेड थ्रू द एज ऑफ कंसेंट बिल 1927 व्हिच डिक्लेयर्ड दैट मैरिज विद अ गर्ल अंडर 12 इनवैलिड। यानी कि अब आप शादी, अब 12 साल से पहले ना तो आप शादी करा सकते, अब शादी नहीं हो सकती तो इंटरकोर्स भी नहीं हो सकता। अब फाइनली 1929 में क्या होता है, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इट वाज अ काइंड ऑफ पार्लियामेंट। उस इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक एक्ट पास किया गया, दैट इज द चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट। ये एक्ट ये इट बिकम अ लॉ ऑन 1st April 1930 व्हेन इट वाज अप्रूव्ड बाय लॉर्ड इरविन। बड़ी मुश्किल से ये एक्ट पास हुआ था और इसमें शादी की मिनिमम एज तय करी गई, फॉर गर्ल्स 14 एंड फॉर बॉयज 18। आमतौर पर जब हम इस एक्ट का जिक्र करते हैं तो लोग इसे शारदा एक्ट कहते हैं। द लॉ इज पॉपुलरली नोन एज शारदा एक्ट after its sponsor Harbilash Sharda, a judge and a member of आर्य समाज। शारदा एक्ट भारत के महिला आंदोलन की एक बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि ये कानून पास हो सका था सरकार पे दबाव बनाकर। लोग पॉलिटिकल पार्टीज के ऑफिसेज के बाहर बैठ के होल्डिंग प्लेकार्ड्स एंड शाउटिंग स्लोगन्स, सरकार पे बहुत दबाव बनाने के बाद ये एक्ट पास हो सका था। लेकिन क्या ये कानून सक्सेसफुल था? नहीं, ये कानून बिल्कुल भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ था। इसके 2 साल में मुश्किल से 100 केस बने थे पूरे भारत में। इस कानून को कई बार डेड लेटर भी कहा जाता है। उसके पीछे कारण ये था, उस वक्त के हिंदू और मुस्लिम, ब्रिटिश हुकूमत उस वक्त के हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के कंजर्वेटिव और कम्युनल एलिमेंट्स को नाराज नहीं करना चाहती थी। उन एलिमेंट्स का ये मानना था कि हमारे समाज में हम लड़कियों की शादी और लड़कों की शादी किस उम्र में कराते हैं, या क्यों डिसाइड करेंगे। इसलिए सरकार ने इसको कभी सीरियसली लिया ही नहीं था और प्रिंसली स्टेट्स को एग्जेम्पशन दे दिया गया था, क्योंकि वो इस कानून को कभी मानने वाले ही नहीं थे। अब अगर मैं आजादी के बाद की बात करूं, अगर मैं पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा की बात करूं, तो इन 1949 दैट मीन्स आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस, लड़कियों की शादी की उम्र 15 साल कर दी गई। तो आजादी के बाद सरकार ने इस पे थोड़ा काम करना शुरू करा। सरकार ने एक और कानून बनाया, दैट इज द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। अब शारदा एक्ट 1929 में बना था, अब 1978 में उसको अमेंड किया गया। Since then, तब से द मिनिमम एज फॉर मैरिज हैज बीन 18 फॉर women and 21 फॉर men। 2006 में चाइल्ड मैरिज रोकने के लिए सरकार एक स्पेसिफिक कानून लेकर आई, दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। शारदा एक्ट जो था उसमें तो केवल लिमिट सेट की गई थी कि क्या एज रखी जाएगी, लेकिन उसमें प्रोसिक्यूशन कैसे होगा, कितनी सजा मिलेगी, इसके प्रावधान थोड़े से कमजोर थे। तो इस नए कानून के सहारे सरकार ने बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट कर दी कि जो भी अंडर एज लड़कियों की शादी कराते हैं उनको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी जाएगी। लेकिन इन सभी कानूनों में इम्प्लीमेंटेशन में आज भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि भारत में पर्सनल लॉज भी मौजूद हैं। अब मैं पर्सनल लॉज की बात करूं तो हिंदू मैरिज एक्ट ये कहता है, उसमें 18 एज है फॉर वुमेन एंड 21 फॉर मैन। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ ये कहता है, उसमें ये कानून कहता है कि अगर लड़की प्यूबर्टी अटेन कर चुकी है, प्यूबर्टी से बात करूं तो 15 साल की उम्र, अगर लड़की प्यूबर्टी अटेन कर चुकी है तो उसकी शादी लीगली सही है। अब हम बढ़ते हैं प्रॉब्लम्स की तरफ। वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं दैट अराइज ड्यू टू अर्ली मैरिज।
नंबर वन, मैं प्रॉब्लम्स की बात करूं तो नंबर वन, अर्ली प्रेगनेंसी हेल्थ कॉम्प्लिकेशन. अर्ली प्रेगनेंसी which results in many health complications without having the proper knowledge about the sexual activities and bodily changes which occur during puberty. She can't cope with changes in her during pregnancy. Number two, fall in high fertility age group. When a girl is married at an early age, she normally tends to have more children. An unwanted pregnancy, lack of access to modern medical facilities to avoid or postpone pregnancy. Women are forced to have pregnancy and carry the child. Number three, inabilities to plan or manage families. Young girls exercise less influence over their children and have less ability to make decisions and about their nutrition, healthcare, and household management. Number four, infant mortality rate. अब infant mortality rate क्या होता है? Is the number of death of children under 1 year of age per thousand live birth. अब मैं IMR के डाटा की बात करूं, 2015-16 के डाटा की बात करूं तो टोटल परसेंट इज 40.7 according to National Family Health Survey. And in the year 2019-21, it was in urban areas it was 26.6%, and in rural areas it was 38.4%. And the total percent of the in the year 2019-21 is for 35.2%. The infant mortality rate is highest in Madhya Pradesh and stood at 48 per thousand live birth in 2018. This means 48 children out of 1,000 live birth died in the state within 1 year. The state, however, showed a slight decline in the year 2019 to 46. This is because the rural areas, the rural part of the state are struggling because of infrastructure issues, health of lack of doctors at facilities, while Kerala has low IMR because it has adequate provision of medical facilities and educational facilities. अब अगर मैं maternal mortality rate की बात करूं तो what is maternal mortality rate? Is defined as death of women while pregnant or terminate or within 42 days of termination of pregnancy. The maternal mortality rate ratio represents the risk associated with each pregnancy, that is the obstetric risk. Maternal mortality rate has declined to 113 in 2016 and 18, from 122 in 2015-17 and 130 in 2014-16. And the last problem is vulnerable to sexually transmitted disease. Marriage before the age of 18 increases the rate of HIV infections in girls. In Kenya, 50% more likely than unmarried girls to become infected with HIV. In Zambia, the risk is even higher, 59%. And in Uganda, the HIV prevalence rate of married girls and single girls between the age of 15 and 19 years is 89% and 66% respectively. Their husbands infected these girls, tried to prove their fertility. They had high frequency unprotected intercourse with their husbands. अब अगर मैं प्रपोजल के मेन मोटिव की बात करूं तो इस बिल का सबसे बड़ा मकसद मातृ मृत्यु दर के खतरे को कम करना है. इस बिल का सबसे बड़ा मकसद ये भी है कि जो लड़कियां उच्च शिक्षा हासिल करना चाहती हैं उन्हें पढ़ाई के लिए समय मिलेगा. अब पढ़ लिखने के बाद शादी करेंगी तो इससे उनके प्रति रूढ़िवादी सोच में बदलाव आएगा. अब पढ़ लिखने के बाद शादी करेंगी तो अपना करियर बना सकेंगी.
अब पढ़ी लिखी होंगी तो जॉब अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट उठा सकेंगी, जॉब अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट उठाएंगी तो आर्थिक तौर पर अपने पैरों पर खड़ी हो सकेंगी। लड़कियों की जिम्मेदारी अब घर की रसोई और बच्चों के पालन पोषण तक ही सीमित नहीं रह जाएगी। जैसा कि अभी बहुत कम मामलों में होता है, अगर लड़की पढ़ी लिखी होती है तो परिवार उससे एक बार उसकी सहमति जरूर लेता है, लेकिन कम पढ़ी लिखी लड़कियों से शादी के लिए उनकी सहमति तक नहीं ली। इस बिल से करोड़ों लड़कियों की जिंदगी बदलेगी। सरकार सरकार का सबसे बड़ा मकसद उन महिलाओं के विकास की है जिनके सपने सामाजिक बंधनों की जंजीर में जकड़ कर रह जाते हैं। आंखों में उड़ने का ख्वाब लिए पिंजरे में डाली जाती हूँ, उठना चाहूं मैं फिर से तो पैरों से रौंदी जाती हूँ। सरकार के इस बिल से करोड़ों लड़कियों की जिंदगी बदलेगी और लड़कियां उच्च शिक्षा हासिल कर पाएंगी, उन्हें ज्यादा समय मिलेगा पढ़ने के लिए। अगर मैं सॉल्यूशंस की बात करूं तो नंबर 1, पॉलिसी इंटरवेंशन टू एड्रेस हेल्थ आउटकम्स. The survey highlights deep inequalities in health outcome. The overall evidence is compelling that health ought to be a matter of concern for the government at national and state level. An action plan to improve India's health need is required, which also need to be inclusive, firm in its commitment, and backed by solid resources. Number 2, lessons to be taken from National Family Health Survey. The National Family Health Survey findings are a reminder of urgent need to close gaps in girls' education and address the pathetic nutrition status of women and children. Number 2, the impact of pandemic must also be noted. The disruption it caused to services such as balanced nutrition for children must be acknowledged. Such scenarios underscore the need for building resilient and fortified systems capable of delivering in the most trying circumstances. And the last one is collaboration in health sector. Current time require integrated and coordinated efforts from all health institutions and other partners directly or indirectly associated with the healthcare services to make the basic as well as advanced health services accessible, affordable, and acceptable to all. The last one is behavior change communication strategy. The government must adopt a targeted social and behavior change communication strategy to ensure that men also take responsibility for family planning. Conclusion पे आते हैं अब. Though there are government schemes, there are various programs like Beti Bachao, Beti Padhao started by the government for the empowerment of females. Over the years, this scheme has helped girls to increase education. This scheme has helped increase girls' education and female empowerment. However, there are still many states in the country that have lacked proper fund allocation and implementation of the scheme. Recently, a committee found that 80% of the fund allotted under Beti Bachao, Beti Padhao was used for social media advertisement. The state used only 25.18% for the implementation of the scheme. Though the scheme largely focusing on spreading awareness through different campaigns, there should be a proper framework to check the implementation of the project. It is crucial to make implementation and to make and implement legislation that help women to complete their education and most importantly create awareness about the importance of education and financial independence and consequences of child marriages that would encourage the families to promote girl child education.
and employment. As when people have complete knowledge about why child marriages are dangerous, and education is essential, because education is the key to bright future. जब लोगों को कंप्लीट नॉलेज होगी कि हाँ, चाइल्ड मैरिजेस इसलिए डेंजरस है और लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, लड़कियों को पढ़ाएंगे तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनेंगी, जब उन्हें, क्योंकि अगर कोई भी लॉ आ जाए, गवर्नमेंट कितनी स्कीम्स चला ले, कितने प्रोग्राम्स चला ले, जब तक लोगों का माइंडसेट नहीं बदलेगा लड़कियों को लेकर, वो एम्पावरमेंट नहीं, विमेन एम्पावरमेंट नहीं आएगा। चाहे गवर्नमेंट कितनी एज बढ़ा ले शादी के लिए, लेकिन जब तक लोगों का माइंडसेट नहीं बदलेगा, विमेन एम्पावरमेंट नहीं आएगा। Because only law or changing women's age for marriage will not empower women, but educating her, provide equal opportunity, health infrastructure, respect, and most importantly, change in the mindset towards them will definitely empower women. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Ms. Tanishka. It was really a very well explanation and a very well connection to the different aspects as well. Now we have some questions from our audience, so let's take them one by one. The first question is from Mr. Shaurabh, and he's basically asking, despite being several laws related to various problems faced by women, be it early marriage or problems faced by them, there is no considerate increase in their position in the society. What's your take on this, Ms. Tanishka? सी मैंने अभी लास्ट में कंक्लूजन में यही बात कही थी कि सबसे ज्यादा, चाहे गवर्नमेंट कितने प्रोग्राम्स चला ले, गवर्नमेंट कितनी स्कीम्स चला ले, लेकिन जब तक लोगों का माइंडसेट नहीं बदलेगा, हमें सोशल अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी, गवर्नमेंट को सोशल अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी रिगार्डिंग द लॉ। जैसे कि ठीक है, 18 से 21 हो गई है मैरिज, गवर्नमेंट कितनी स्कीम्स चला ले, गवर्नमेंट ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन चलाया, तो लोगों के बीच में लोगों को ये जागरूक करना पड़ेगा कि हाँ, लड़कियों को पढ़ाना जरूरी है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों के माइंडसेट को बदलने की। जब लोगों का माइंडसेट बदल जाएगा, ये स्कीम्स, ये प्रोग्राम जो गवर्नमेंट चलाती है, ये अपने आप ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल हो जाएंगे। Okay, fine. Now, next question is from Miss Archana Bharti. She is trying to ask that don't you think that awareness is much more important than making acts whose implementation are still doubtful at ground level? Yes, absolutely. Awareness is most important. जब लोग अवेयर नहीं होंगे, उनको नहीं पता चलेगा। वही चीज मैंने अभी लास्ट बोली बात में, वही चीज रिपीट हो रही है कि लोगों को अवेयर करना बहुत जरूरी है, लोगों के माइंडसेट को चेंज करना बहुत जरूरी है। आज भी इंडिया में ऐसे कुछ बैकवर्ड एरियाज हैं जहां लोग आज भी ये सोच रखते हैं कि लड़की को क्यों पढ़ाना, वो तो अपने घर चली जाएगी, वो तो पराया धन है। ऐसा आज भी कहा जाता है, लोग आज भी ऐसी सोच रखते हैं। इसलिए लोगों का माइंडसेट बदलना ज्यादा जरूरी है। बेशक गवर्नमेंट कितने भी लॉज ले आए, कितनी भी स्कीम्स चला ले, लेकिन जब तक लोगों का माइंडसेट नहीं बदलेगा, ये स्कीम सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगी। Okay, now next question is from Ms. Samriddhi, and she is asking, what would be your answer to the so-called critical intellectuals who say that child marriage is a matter of cultural beliefs and it should not be interfered in any way? Okay. See, child marriage, अर्ली एज मैरिज होना, कितनी सारी प्रॉब्लम्स लड़कियों को फेस करनी पड़ती है। क्यों ना गवर्नमेंट इंटरप्ट करे, गवर्नमेंट को इंटरप्ट करना पड़ेगा। सी देखो, आईएमआर बढ़ता है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बढ़ता है, तभी तो गवर्नमेंट ये बिल लेकर आई है। मैंने स्टार्टिंग में मेन प्रपोजल में सबसे पहले यही लाइन बोली थी, इस बिल का सबसे बड़ा मकसद मातृ मृत्यु दर के खतरे को कम करना है, इसलिए गवर्नमेंट तो इंटरप्ट करेगी ना। Okay, now the next question is from Mr. Tushar Dubey, and he's asking, making laws and implementation of laws are the two different things. According to you, what are the, just a second, according to you, what are the measures government should adopt to implement this law in rural areas? Yes. अभी मैंने कंक्लूजन में लास्ट बीच में एक लाइन बोली थी कि हाँ, एक रिसेंट अभी गवर्नमेंट ने जो ये प्रोग्राम चलाया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन, तो कमेटी ने देखा कि ऑलमोस्ट 80% ऑफ द फंड अलॉटेड
allotted under Beti Bachao Beti Padhao program was used for social media advertisement. And state used only 25.18% of fund allotted to implement the scheme. So this scheme largely focus on spreading awareness through different campaigns. So there should be a proper framework to check the implementation. गवर्नमेंट चलाती है, गवर्नमेंट फंड भी देती है, लेकिन एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा गवर्नमेंट को टू चेक द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट. Okay. Now it's time for some final remarks from our chief guest. So for this, I would like to call today's chief guest, Dr. Manish Sarma, sir. So please give us your final remarks and some of your futuristic suggestions for this platform Graduate Scholar Talk series. Sir, please. थैंक यू बेटा. तनिष्का बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूंगा आपसे कि 100 आउट ऑफ 100 वेल डन. और मेरे पास कोई भी एडजेक्टिव इस समय नहीं है जो मैं आपके लिए यूज करूं. ऑलराइट. थैंक यू सो मच सर. एंड इस जहां तक ये जो बिल प्रपोजल और बिल की बात है और जो आने वाला एक्ट होगा और जो कानून बनेगा उसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि सब लोग हकीकत शायद जानते भी हैं. तो जैसा आपने सोचा, जैसा आपने कहा, वैसा ही हो तो बहुत अच्छी बात है. और जहाँ तक मेरा सवाल है बेटे, आई एम द मैन ऑफ हिस्ट्री, तो मैं तो 1929 पे रुक जाता हूँ, राइट. लेकिन 1929 तक भी जो आपने बात की उसके बारे में मैं एक दो बातें आपसे बोलना चाहूँगा. एक तो ये कि जब भी आप चाइल्ड मैरिज के बारे में पढ़ें या बोलें या लिखें, तो प्लीज ट्राई टू मेक क्लियर कट डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ consent and child marriage, because there is a technical difference between age of consent and child marriage, because age of consent is the part of child marriage and child marriage is the institution, right. First of all, in 1860, when IPC was formulated, the age of consent was fixed at 10 and it was raised up to 12 in 1891. But the issue of child marriage was not touched at all, right? Only in 1929 it could possible. ये संभव ही 1929 में पहली बार हुआ, जब हमारे देश में पहली बार आयु की जो आयु थी लड़की और लड़के की दोनों की, वो पहली बार फिक्स करी गई. हालांकि हमारे देश में शुरुआत से ही लड़की की शादी की उम्र जो है वो एक बोन ऑफ कंटेंशन रही है, लड़के की ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रही है. लड़का तो कर लेगा, जब भी जो करना होगा वो अपने आप कर लेगा, लेकिन हाँ लड़की की शादी की उम्र जो है वो एक प्रॉब्लम है. सेकंड क्वेश्चन हमारा ये आता है कि जिसके बारे में मैं बोलना चाहूंगा कि 1891 तक, इनफैक्ट 1891 तक हमारे देश में कभी भी चाइल्ड मैरिज को खत्म करने की बात क्यों नहीं की गई. इसके लिए आपको 1772 में जाना होगा, when the Warren Hastings, who was the first Governor General of India, right, and he adopted the policy of non-interference, अहस्तक्षेप की नीति, और उस अहस्तक्षेप की नीति से ही आपने जो बताया मुस्लिम पर्सनल लॉ और हिंदू पर्सनल लॉ ने जन्म लिया. क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नमेंट ने तो बोल दिया कि हम हिंदुओं के मामले हिंदुओं के अकॉर्डिंग सुलझाएंगे और मुसलमानों के अकॉर्डिंग सुलझाएंगे. तो दोनों के पर्सनल लॉ तो उन्होंने बना दिए ना, वो तो उस समय बन गए. अब इशू आता है विमेन्स क्वेश्चन का 19th सेंचुरी में. तो हमारे देश के सोशल रिफॉर्मर्स के लिए क्या था कि जो भी उन्हें एक्ट या लेजिस्लेशन पास कराना है उसके लिए उन्हें उस प्रैक्टिस के अगेंस्ट में शास्त्रिक एविडेंस देना होगा.
सती के लिए था, एक्ट पास हुआ। विडोज की रिमैरिज को लीगलाइज कराने के लिए था, पाराशर स्मृति में मिल गया, वो हो गया। लेकिन खुद ईश्वर चंद विद्यासागर, जिन्होंने 1850 में एक रेवोल्यूशनरी पैम्फलेट लिखा था इविल्स ऑफ चाइल्ड मैरिज के बारे में, और जितनी बातें आपने बताई वो 1850 में लिखी जा चुकी थी, बट ईश्वर चंद विद्यासागर कुड नॉट इनिशिएट any campaign against child marriage. In fact, when the age of consent was raised in 1891, he was the first person who opposed it. क्योंकि हमारे शास्त्रों में ये लिखा है कि लड़की की आयु शादी जो है वो 10 साल तक की उम्र तक करा देनी चाहिए। रिफॉर्मर्स ने अपनी आवाज को रजिस्टर तो करा दिया, किया फॉर द हिस्ट्री बुक्स, हम सब लोगों के लिए रजिस्टर तो करा दी उनकी। स्वतंत्र विद्यासागर वाज द फेमस रिफॉर्मर एंड राजा राम मोहन राय वाज द फेमस रिफॉर्मर एंड ब्ला 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 ब्ला। लेकिन उन्होंने कभी भी चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? क्योंकि उनके पास शास्त्रिक एविडेंस नहीं था। एक बेटा, अब आपने एक बात बोली थी कि एज ऑफ कॉन्सेंट के बाद 1929 तक विमेन का क्वेश्चन कुछ दब सा गया, क्योंकि नेशनल मूवमेंट आ गया था और गांधी नेहरू अपनी ज्यादा बातें कर रहे थे, देश को आजाद कराने की बातें ज्यादा चल रही थी। 1917 में गांधी आ गए थे। या दैट वाज, आप सच बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि विमेन का क्वेश्चन दब गया था। आपने खुद अभी इसका बारे में जिक्र किया, रकमाबाई के बारे में। दैट वाज कॉल्ड इंडिविजुअल फेमिनिज्म, व्यक्तिवादी या व्यक्तिगत नारीवाद वो कहलाता है। ठीक है, उस समय राष्ट्रीय स्तर पर कुछ नहीं हुआ, लेकिन 20th सेंचुरी में आने के बाद हमारे देश की औरतों ने जागना शुरू किया। पहले इंडिविजुअल था, फिर प्रोविंशियल हुआ, प्रांतों के स्तर पर, और उसके बाद 1917 में पहली बार नेशनल लेवल पर विमेन्स इंडिया एसोसिएशन बनी। देन NCWI, नेशनल काउंसिल फॉर विमेन्स इन इंडिया, एंड इन 1927 ऑल इंडिया विमेन्स कॉन्फ्रेंस। मैं 1929 से पहले की बात कर रहा हूं बेटा आपसे। तो ऐसा नहीं था कि राष्ट्रीय आंदोलन था तो विमेन ने बात करना छोड़ दिया, बात बोलना छोड़ दिया। हाँ, इसको हम इस तरह कहेंगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसके ऊपर इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया। उसका रीजन ये था कि 1891 के एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट के बाद हमारा देश दो भागों में डिवाइड हो गया कि ये सही है या ये गलत है। मॉडरेट लीडर्स ने कहा ये सही है, और एक्सट्रीमिस्ट लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, उग्रपंथी या गरम दल जिसे हम बोलते हैं, उन्होंने कहा कि ये अंग्रेज कौन होते हैं हमारे घरेलू मामलों में दखलंदाजी करने वाले। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया, क्योंकि वो तो विदेशी थे, वो तो फिरंगी थे, उन्हें हमारे देश से क्या प्रॉब्लम। तो 1929 में वो 1929 तक, लेकिन विमेन ने जब पहली बार ये कहा कि वी शैल नॉट एक्सेप्ट एनी रिलीजियस लॉ, बिकॉज उस समय कंजर्वेटिव सेक्शन एक टेक्स्ट को कोट करता था, शीघ्र बोधा, जिसमें यह लिखा था कि गर्ल शुड बी मैरिड टिल द एज ऑफ 8, 9 और 10, मैक्सिमम 10, क्योंकि उनके लिए लड़की 10 इयर्स की लड़की प्यूबर्टी अटेन कर लेती है, राइट। लेकिन अगर 10 तक उसकी शादी नहीं की जाती है, देन हर ब्रदर and her parents will go to hell.
वो नरक में जाएंगे। लेकिन महिला आंदोलन ने ये कहना बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हें मरने के बाद तो नर्क सूझ रहा है, कंजर्वेटिव सेक्शन के लिए कहा, लेकिन तुम्हें जीते जी उस लड़की के जीवन में जो नर्क है वो दिखाई नहीं देता। ये आपने इसको शारदा एक्ट को एक डेड लेटर तो कहा, यस यू कैन से इट। इफ यू सी इट्स रिजल्ट, यू कैन से कि 2 साल के अंदर 100 शादियां हो गई या 6 महीने के अंदर ढेरों चाइल्ड मैरिजेस हो गई, या रिजल्ट के हिसाब से मैं आपके साथ हूं, मैं आपकी बात मानता हूं कि दैट वाज डेड लेटर। लेकिन 1929 की जो उसकी समय की लिमिटेशन थी, उसको ध्यान में रखते हुए हम ये नहीं कह सकते कि वो एक डेड लेटर था। अगर वो डेड लेटर था तो जब हम आजाद हो गए तो फिर 1978 में ये अमेंड क्यों हुआ? वो तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हम तो आजाद हो चुके थे, हम तो अपने आप को खुद गवर्न कर रहे थे। और अभी जो ये 2006 और 2021 में जो ये सब कुछ हो रहा है, इसके बारे में मैं बहुत ज्यादा स्टेटमेंट नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि दैट विल बिकम अगेन पॉलिटिकल, यू नो। तो इसके बारे में मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा बेटा। बट योर प्रेजेंटेशन वाज स्प्लेंडेड, 100 आउट ऑफ 100 वंस अगेन। और मेरे पास तालियों की कमी है, मेरे पास एडजेक्टिव्स की कमी है बेटा। Congratulations. Thank you so much, sir. And I would congratulate to Manish Karamwar sir, who has organized this graduate scholar talk, and he has invited me in the 65th series. Thank you very much, sir. Thank you for coming. Thank you. Thank you so much, sir, for your knowledgeable words. Now, Miss Tanishka, I would like to know your experience with GSTS. फर्स्टली मैं मनीष सर को थैंक यू बोलना चाहूंगी। सर ने मुझे बहुत एनकरेज करा, सपोर्ट करा। सर मेरे को बोलते थे वेरी गुड तनिष्का, कॉन्फिडेंस में रहना, एकदम बिल्कुल मत डरना। एंड अजय भैया, थैंक यू सो मच। मानवी दीदी जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, थैंक यू GSTS।